जोर करो अरदास तुद भावै ताण रास। सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। सुनिया ईश्वर बर्मा इंद, सुनिया मुख सलाहन मंद, सुनिया जो जुगत तन भेद, सुनिया शास्त्र सिमृत वेद। नानक भगता सदा वेगास, सुनिया दुख पाप का नास। नानक भगता सदा वेगास, सुनिया दुख पाप का नाश। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अति सन्मान सत्कारयोग जुगो जुग अटल चवर छत्र तख्त दी मालिक हजूर सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की अजीम मुकद्दस गोद अंदर टलदी हुई शाम के नाल गुरु पातशाह के पावन दरबार सजे ने। आप बड़भागे हो गुरु के हजूर गुरु बैठ के रहरास का पाठ अरदास और हुक्मनामा स्रोत पाया है। सो अगला जो समा है गुरु शब्द व्याख्या का, आओ लड़ीवार धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह की पावन बाणी की विचार प्रारंभ हुई है। सोने दियां पौड़ियां दे विचों अगली पौड़ी आप जी ने स्रोत की है। इसे भी विचार गुरु पातशाह कृपा करके करवा लें। एक बार सब रसना पवित्र करिए। फिर शब्द विचार रखो जी। वाहिगुरु धन गुरु नानक पातशाह जी। कल असी सुनने की पहली पौड़ी विचारनी की सी। सुनिया सिद्ध पीर सुरनाथ, सुनिया धरत तवल आकाश, सुनिया दीप लो पाताल, सुनिया ओह न सकै काल। नानक भगता सदा विगास, सुनिया दुख पाप का नाश। सो अगलेरा शब्द सतगुरु जी कहते सुनिया ईश्वर बर्मा इंद। कल असी डिटेल च विचार की भी सुनने का महत्व की है। जिहड़ा सुनिया बोलना किवें है, सुनने दे नाल गुरु पातशाह कुछ बख्शते ने। असीं कल भी कह रहे थे भी गुणवंतिया गुण दे, गुण तो दिंदा है। गुरु हैल्प करता है, गुरु मदद करता है, गुरु सहाई हुंदा है। पर उहदा सहायता करन दा एक ढंग है। गुरु सहाई हुंदा है। आप सहाई हुआ सच्चे दा सच्चा ढोआ, पार ब्रह्म हुआ सहाई, कथा कीर्तन सुखदाई। ਜਾਂ फिर असी ये कह सकते हैं बई बंदा आसरा तकदा है। तो जे गुरु का असी आसरा तकीए तो गुरु का आसरा किवें मिले। असी किसी का आसरा तकते हाँ
ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੀਂਹ ਆ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕ ਲਓ, ਥੱਲੇ ਖੜ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਗੁਣ ਕਿਵੇਂ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬਈ ਹਮ ਅੰਧਲੇ ਅੰਧ ਵਿਖੇ ਬਿਖਰਾਤੇ, ਕਿਉਂ ਚਾਲੇ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰੇ ਸੁਖ ਦਾਤਾ, ਹਮ ਲਾਵੇ ਆਪਣ ਪਾਲੀ। ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲਾਏ? ਪੱਲਾ ਕਿੱਥੇ ਦਿਸਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ? ਪਰ ਬਾਲਾ ਫੜਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਾਲਾ ਫੜ ਲਿਆ, ਪੱਲਾ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰ ਏਕ ਪੈਂਡਾ ਚਾਲਤ, ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਚਾਲੀ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਚਾਲ ਚਲੋ। ਤਿਸੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਚਾਲ, ਐਵੇਂ ਤੁਰੋ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਸਹਾਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਤੁਰ, ਐਵੇਂ ਤੁਰ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਐ ਸਮਝ ਲਓ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਬੱਚਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲੀ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਤੇ ਪਿਓ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਬੜਾ ਫਰਕ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਆਣਾ, ਬੱਚਾ ਛੱਡ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੇ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ ਜੇ ਪਿਓ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲੇ। ਹੁਣ ਚੀਜ਼ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਫਿੰਗਰ ਫੜੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਹੱਥ ਫੜਿਆ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੱਥ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਡੋਲ ਸਕਦਾ, ਕਿਤੇ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ, ਕਿਤੇ ਥਿੜਕ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਜੋ ਪਕੜਿਆ ਹੈ ਪੱਲਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਛੱਡ ਦੇਗਾ। ਪਰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਿਓ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਏਗਾ। ਮਾਂ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਕੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਹਾਸਲ ਮਿਲੇਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਮੈਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾਏਗਾ ਚਾਹੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਛੱਡਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਵੇਂ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ। ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੱਲਾ ਫੜਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਆਪ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਆਪ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ। ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰੇ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੱਥ ਧਰੇ ਹੈ। ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਚਰਨੀ ਲਾਇਆ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਲਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪੂਰੇ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਲੱਗਣਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ, ਜਿਸ ਕੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੁਆਮੀ ਬਣ ਜਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਸੁਆਮੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੜਾ ਹੈ ਫਿਰ ਹੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਹੀ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਤੇ ਗਲਤ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਉਹ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਢਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਡਾਢੇ ਨੇ ਬਾਂਹ ਪਕੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ, ਬੋਲੋ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਹਾਂ ਬਾਹਰ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਰੱਬ ਵੱਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਕੀ ਉਹ ਆ। ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਉਹ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਜ਼ ਉਹਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਬ ਖੜਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਜਾਂ ਤੂੰ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਖੜਾ ਹੋਵੇਂ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ?
ये वो है भी रब ने बांह फड़ी हुई है। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਛੜਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਆ। ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੱਡਤਾ ਪੱਲਾ ਛੱਡਤਾ, ਵਿਖੇ ਵਿਖ ਖਾਹੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਆਪ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੱਲਾ ਪਕੜਨਾ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪੱਲਾ ਫੜਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਚਰਨੀ ਲੱਗਣਾ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨੇ ਚਰਨੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਧਰ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਮਨ ਟਿਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਟਿਕਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਮੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਂਹ ਪਕੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਹੈ ਸੁਣਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਰਾਤ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੁਣ ਲਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਲਈ। ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਉਹ ਈਸਰ ਬਰਮਾ ਇੰਦ ਇੱਕ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋਂ ਇੰਦਰਾਸਣ ਬੈਠੇ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੈਠੇ ਮੀਨਜ਼ ਬਹੁ ਬਚਨ ਹੈ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋਂ ਇੰਦਰਾਸਣ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇੰਦਰ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁ ਵਚਨ ਹੈ। ਬੈਠੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁ ਵਚਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਈਸਰ ਹੈ, ਬਰਮਾ ਹੈ, ਇੰਦ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਜਾ। ਮੁੱਖ ਖੱਖੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ, ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਣ ਮੰਦ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੰਦ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਮੰਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਤੀ ਮੰਦ ਹੈ, ਮੰਦੀ ਬਿਰਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੌਖੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਈਏ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੌਡਾ ਰਾਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਮੰਦ ਬੁੱਧੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਵੱਢ ਕੇ ਤਲ ਕੇ ਖਾ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿਹਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ? ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਹੁਣ ਮੰਦ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਮੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹੁਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਮਹਾਤਮਾ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਮੰਦ ਬੁੱਧੀ ਵੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਮੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹੁਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਸੁਣਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਤਨ ਭੇਦ, ਤਨ ਦੇ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀਏ, ਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਭੇਦ ਨੇ, ਇਹ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਨੰਦ ਸੁਣ ਹੋ ਬੜ ਭਾਗੀ ਹੋ, ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਧੁਨ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਸੁਣਦੀ ਹੈ? ਚੱਲਦੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪਲਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਧੜਕਣ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਗਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਉਣਾ ਗੁਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਰੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸਵਾਸ ਚੱਲੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਆਪਦੇ ਸਵਾਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖੋ, 1 ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਸਵਾਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਐਵੇਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਵਾਹ ਖਿੱਚ ਕੇ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਸੁਣ ਲਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਵੇਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ये जिन्होंने सुनते हैं शब्द में सुनते हैं धुन में सुनते हैं। महाराज कहते धुन में ध्यान, ध्यान में जानिया। धुन में ध्यान लग जाता है। किसी भी चीज़ की धुनी है। आ किन्ने पखे चलते हैं, तुसीं हुणी नोट करके देख लो, नहीं पता लग रहा। मैं 2 मिनट बोलना बंद कर दिया, तुसीं पखियां 'च ध्यान लो, तुहानूं कल्ले कल्ले की आवाज़ आऊगी, सुनूगी, क्योंकि ध्यान उहदे चले गया। नहीं गया भावें जा सारी देर चली जाए। जद तक तुसी किसी चीज़ के सुनने विच ध्यान ही नहीं लाओगे, तुहाडा मन सत संतोख वाला नहीं बन सकता, सहज वाला नहीं बन। ये बरकत अगलियां 2 पौड़ियां च ने। इस अवस्था ते पहुंचा हुआ बंदा ईश्वर हो सकता, ब्रह्मा हो सकता, इंद्र हो सकता। इसनूं सुनने दे नाल सिफत करन लग जाता है, क्योंकि सुनन लग गया उन्होंने सिफत सुनी हो जाती है। अगे पातशाह कहते सुनिया जोग जुगत तन भेद। मैं कल भी जिक्र कराया सी भी इहदे विच तन दे विच जिन्ने भेद ने सुनन दे नाल प्रगट होए ने। जिवें भगत नामदेव जी ने 72 नाड़ियां का जिक्र किया शरीर के अंदर का। हुण अंदरला सारा सिस्टम है, ये ते जिन्ना तुसीं देखदे हो अज योगा हो रहा, होर सब कुछ करते नहीं, ये की है? ये अंदरला ज्ञान है। जे श्वास नूं इन्ना रोकोगे, श्वास नूं एवें रोकोगे तो यदा असरा होएगा। साडी बॉडी अपने आप नूं सैट करती है। श्वासां दी प्रक्रिया है, कोई श्वास रोक क्यों करता? देखो ये योग मत नाल संबंधित है। तन का भेद जानने की कोशिश की, पर जे सुनिया तन विच बहुत कुछ है। जिन्होंने असीं कहने आपदा मानी है, यही नहीं लभदा, पहले तो यही खोजना सी। ये सुनिया ही पता लगना, यही सुनिया ही पता लगना। अंदर सहज किवें बनता है, अंदर आनंद है। तुसीं जदों किते कीर्तन सुन के हटदे कहंदे अज बड़ा आनंद आया, तुसीं दसो भी कित्थे पिया हुंदा हो आनंद? कित्थे हुंदा? अंदर ही हुंदा ना। अंदर कदों आया? सुन तो पता लगता है। इसे करके लास्ट में गुरु पातशाह कहते हैं आनंद सुनो वड भागी। ये सुनने का विषय है। सुनो किवें सुनी? जो सुन लोगे सगल मनोरथ पूरे। एक स्टेज ते है। तो गुरु पातशाह कहते हैं सुनिया शास्त्र सिमरत वेद। सुनने दे नाल कोई शास्त्रां दा, 6 शास्त्रां दा, 27 सिमरतियां दा, 4 वेदां दा बंदे नूं ज्ञान हुंदा है। पढ़ लिया, पर वो कित्थों आईयां ने? तुसीं ध्यान देखो, छोटी जी बेनती कर लगा, बंदा पढ़िया लिखिया जी, तो जोड़े आम पब्लिक से तो पढ़ ही नहीं सकते सी। हुण तो पढ़न का अधिकार ही कोई नहीं सीगा। हुण ध्यान दिओ, बाबा कबीर साहब की बाणी, बाबा रविदास जी की बाणी कितनियां PhD हो गई, कितनियां PhD, कितनी आला बाणी है। सगल भवन के नायका एक छिन तरस। तो तुसीं दसो भी वो तो किते वेद पढ़िया ही नहीं, किते उन्होंने सिमरतियां पढ़ी ही नहीं। फिर ज्ञान कित्थों प्रगट होया? सारा जिहड़ा ज्ञान आया है कित्थों प्रगट होया? अंदरों प्रगट होया। और सुन प्रगट होया। सुनिया की? सुनिया परमेश्वर का नाम। सुनिया की? सुनिया परमेश्वर की याद। गुरु पातशाह कहते इस करके नानक भगतां सदा विकास। जिहड़े भगत सदा विकास रहिंदे ने, खेड़े च रहिंदे ने। क्यों? क्योंकि अंदरों सुनते रहिंदे ने। सुन की अवस्था। ये दोनों पौड़ियां च ये स्टेजां का जिक्र किया जिहदे ते बंदा पहुँच के, आप कहने भी देखो इत्थे पहुँच गया, ईश्वर बन गया, सिद्ध हो गया। सिद्ध की है? सिद्धि हासिल हुई है ना। फिर सिद्धियां तो कोई वड्डी गल नहीं। पिछे आप पढ़िया सी ना, जिवें कहंदे ने भी नवनिधि 18 सिद्धि पिछे लगियां पे, किहदे पिछे तुरे फिरदियां ने? जिहड़ा सुनना लग जाए। जो हर हिरदे नाम सदा वसाए। जिहदे हिरदे च नाम वस गया, जिहदे हिरदे च हरि वस गया, महाराज कहते वो पिछे फिरदियां ने सिद्धियां। सीधा मतलब रिद्धि सिद्धि बाद में आउंदी है, फिर मिलती है। जिवें कहो भी बाणी पढ़ी, बाणी सुनी, फिर आनंद आया, बाद च आनंद आया, फिर संतोख आया, फिर सहज आया।
ये अवस्था का जिक्र है। रिद्ध बंदे ने सिद्ध मिल गई, सिद्धि हासिल हो गई, सिद्ध हो गया। काहदे विचों? बाबा कहता किते जाण की लोड़ नहीं, सिद्ध सिर्फ सुनने दे विच। हुण फिर अगली पौड़ी विच सुनिया सत संतोख ज्ञान। हुण ये इत्थों बरकतां हुंदियां ने सारियां। मैं दूजे कहा सी ये असर ने। तुसीं सुनिया ते जिहड़ा बंदा कहंदा सत संतोख अते ज्ञान, ये अंदरों प्रगट होंदे ने। सत भी अंदरों प्रगट होंदा, संतोख भी अंदरों प्रगट होंदा। तीसरा ज्ञान। हुण बाणी उचरी है, जिन्होंने कदे किताब किते जाके पढ़ी नहीं है। तुहानूं पता होवे गुरु रामदास पातशाह जी सोढ़ी सुल्तान किसी स्कूल च नहीं गए, तो सब तो बाणी उन्हों की आला बाणी है। और उन्होंने बाणी का तुसीं कहोगे भी कमाल की लिखी हुई है, किसी स्कूल च नहीं गए, कित्थों आई थी? ये ज्ञान प्रगट होंदा है सुनन विचों। फिर वापस है पहला गुण है सुनन दे नाल। जिन्हों सुनन की वृत्ति का मन नहीं बनया, जिहदा सुनन विच ध्यान ना लग्या, तो बाबा जी कहते उन्होंने सत संतोख का भी नहीं पता लगता। ज्ञान सपोज करो सौखी जी उदाहरण, टीचर बोली जा रहा, बच्चा सुन नहीं रहा, तो की मिलना? कुछ भी नहीं। परमेश्वर नित बोलता है, अंदर नित बोलता है, ये सुन ही नहीं रहा। जरे जरे च बोल रहा है, वो तेरे अंदर बोल रहा। बाबा जी कहते सुन ही नहीं रहा। जद सुनना आ गया, इन्हू सुनिया सत संतोख ज्ञान, सुनिया 68 का इशनान। तुसीं इत्थे बैठे हो 68, वैसे तीर्थ बहुत नहीं, पर उन्होंने प्रमुख बन ले भी 68 ने। 68 तीर्थों का इशनान काहदे नाल? इत्थे बैठे ना होई जांदा, सुनन दे नाल ही। बंदा सुनता भी होवे ते फिर भी चला जाए, वो तो जाने की लोड़ ही नहीं। ये 68 तीर्थों का इशनान इत्थे हुंदा है। महाराज जी कहते जे तेन सुनना आ गए। देखो बंदा, मैं कई बार कहना सी अमृतसर जाके आए, अक्सर ही गल करते कई बार जायज की इशनान करया, इशनान किया, जो पूछे बंदे का मन का इशनान होया, वो काहदे नाल होना सी? उस भी बाहरों इशनान तो हो गया, इस करके तो है बाहरला इशनान तो हो गया, अंदरला इशनान वो जिहड़ा इशनान सी वो सुनने नाल होना सी। भी की सुनिया उत्थे जाके, गुरु कोल जाके, गुरु का संबंध ही सुना। उन्होंने तो गुरु को आके तुसीं कुछ सुनते हैं। जे सुनना आ जाए, सुन का महात्म ही है। गुरु पातशाह कहते सुनिया 68 का इशनान, 68 तीर्थों का इशनान ही हो जाता है। 10 8 8 60 चारे खानी, यह वर्तन है सगल संसारे। बाबा रविदास जी कहते 68 तीर्थ ने, सिर्फ मैं नाम ही लेना, नाम तेरो आरती। एक तेरा नाम ही लेना, मैं इत्थे बैठे इशनान 68 कर लेना। मतलब इहदा की है, ये जिहड़ा नाम सुनना है ना, नाम जपना है, यही सब कुछ बनता है। बंदा इशनान करन तो चलिया जाता है, तो वो फिर वही गल है भी नहावन चले तीर्थी मन खोटे। खोटा तो मन सीगा, उन्होंने सही करना सी। वो काहदे नाल होना सी? सुनन दे नाल, गुरु की सुनन दे नाल होना सी। जिन्हां ने सुन ले, गुरु पातशाह कहते सुनिया 68 का इशनान, सुनिया पढ़ पढ़ पावै मान। इसका मतलब हो जाएगा भी पढ़ पढ़ के मान नहीं। जिमें कोई बंदा कहे जी मैं इन्ना पढ़ लिया, मैनू इन्ना पढ़िया, इन्ना ज्ञान है, इन्ना ज्ञान है, तो जिन्हें सुनिया होया है उन्होंने इन्नी है। मैं पहले क्या कहना भी जिमें बाबा रविदास जी ने किहड़े स्कूल पढ़िया, जेड़े बड़े बड़िया ने ब्राह्मणा ने बड़े बड़े ने जिमें कह लो भी ग्रंथ वेद पढ़े हुए सी, पर उन्होंने मेरे कुछ भी नहीं सी। गुरु हरकृष्ण पातशाह जी 5 साल की उम्र, छोटी उम्र दे विच जेड़ा पंडित आके कहता भी
मेरे नाल गल करो। तो तुसीं देखो वो कहंदा मैं तो इन्ना ज्ञाता हाँ, इन्ना पढ़िया लिखिया है। हुण की है इत्थे सुनन दी वार्ता है। ये पढ़ना पढ़ गड्डी लदी वाला, पढ़ भरीए साथ, पढ़ बेड़ी पाईए, पढ़ गड्डीए खाद। पढ़िए जेते वर्ष वर्ष पढ़िए जेते सास, नानक लेखे एक गल। ये एक गल किहड़ी है? बाकी दी गल्लां बेकार ने। एवें नहीं हैगा भी फलानी किताब पढ़ लो चो इक्को ही गल। नहीं, इहदा मतलब ये नहीं हैगा। नानक लेखे एक गल। जिस किताब दे विच एक दी गल हो रही है, एक दी परमेश्वर दी, जिस भी चीज़ नूं तुसीं मर्जी पढ़ो पर उहदे च गल किहदी होवे? एक दी होवे। नानक लेखा एक गल। एक जे तो एक दी गल हो रही है फिर तो लेखे विच आ, नहीं तो होर हौमे झखना चाक। ये पढ़िया लिखिया जिहड़ा बंदा है उहनूं जिवें माण मिलदा है ना, बाबा जी कहते केवल सुनन दे नाल ही उन्ना माण मिल जाता। सुनन दे नाल जिन्हां ने सुनिया है, किसी स्कूल च नहीं गया, किते यूनीवर्सिटी च नहीं गया, किते मंदिर वेद च नहीं पढ़िया, कोई कुछ नहीं पढ़िया, तो तुसीं देखो भी अज उन्हां दी बाणी कितनी आला लिखी है। यही है जिन्हां नूं ज्ञान प्रगट होया, सुन लिया। साहिब कहते सुनिया लागे सहज ध्यान। सहजे ही ध्यान लगता है। आ है सुनन विच। मैं अक्सर ही कहना हुंदा गा, इहदी जिहड़ी ये कुछ विधा है बाणी दी, एक वे तो नहीं, यही पंक्तियां ने सिर्फ आप कहने जी सुनने की गल है, मैं बोल रहा तुसीं सुन रहे हो, बल गल खत्म नहीं। ये तो एक पहलू है। ये भी सुनना भी मैं रात कह एक सुनना वो होंदा भी सुनता लई इधर दी कढ़ती, एक वो आ भी कन्न रोज़ सुनते ने पर वह असर कोई नहीं। एक सुनना होंदा है जो सुनिया उहदे ते मन विचार करता है, वो सुना। जित सुनी मन तन हरिया हुआ। मन हरिया हो जाता है, मन में कोई प्रगट होंदा भी आ ये है सुनन दा सुनिया। गुरु बाबा जी कहते सुनिया लागे सहज ध्यान। सहज का ध्यान लगता है। देखो तुसी अक्सर कई बारी मैं बेनती करता भी कहणगे जी अज बड़ा आनंद आया कथा च, या कह लो जी कीर्तन च अज बड़ा आनंद आया। मैं उन्होंने कहना भी ठीक है भाई, भी ਇਹਦਾ मतलब ये भी अज कथा या कीर्तन में अज आनंद सीगा तां आ गया है ना, पहला नहीं सी। कीर्तन तो वही है, आनंद च पहला ही सी, फिर अज क्यों आया? एक और ये कहणगे जी आ हुक्मनामा बहुत वधिया है, ये भी बड़ा गल बड़ी महाराज ने कृपा की भी हुक्मनामा बड़ा वधिया है। ਇਹਦਾ मतलब गुरु ग्रंथ साहिब च थोड़े हुक्मनामे वधिया भी ने, कुछ घटिया भी, ऐ भी हो सकता ना, तां ही कहने भी वधिया आया। नहीं यही तो समझण की गल है। ये तो बाणी सारी एको ही, ये दो है ही नहीं कोई। असीं कि सोच लेंगे भी जो कदे गुरु तेग बहादुर का हुक्मनामा आ जाए भी पता नहीं दुख जे वाला आ गया, बड़ा औखा हो गया काम। है जे खुशी ते आ जाए गमी वाला फिर बंदा ही सोचता पता नहीं कह जा, क्योंकि उन्होंने ऐ लगता भी ये जी बाणी है ना ये अलग अलग है, सहज ध्यान है ही नहीं। मैं फिर बेनती करदा भी जिद्दे सुनिया अज आनंद आया। नहीं भाई सारी बाणी आनंद नाल भरी हुई है। आनंद उदे आया जिद्दे तुसी जुड़ गए, जिद्दे तुसी जुड़ गए उदे कहते जी अज आनंद आ गया। अज जुड़िया अज आनंद आ गया। जिद्दे नहीं जुड़ते हुण इंज कहो भी बंदे दे हत्थ विच एडा सारा मिसरी का डला फड़िया होवे तो जिधरों मर्जी मूँह ला लो की होएगा, मिठास होनी होगी। वो थोड़ी हो सकता भी आप कहने एक पासे तो कहने बाणी तो जी मिठी है, अमृत मिठी धार है, अमृत की बाणी, अमृत बाणी हर हर तेरी तो अमृत है, फिर कौड़े वचन तो है ही नहीं कोई, फिर माड़े किमें हो गए? नहीं हैगा। नुकता यह है जिस दिन असी जुड़ जाने रस उदे आउंदा है, जिद्दे साडा ध्यान नहीं हुंदा। मैं रात भी कह रहा सी ना भी ध्यान धर के बोलो जी, अरदास च कहंदे ने उन्होंने स्पैशल लिखा है भी ध्यान धर के बोलो।
तो हुण जे मेरे वर्गा का ध्यान होर पासे फिरूगा फिर बोल भी रहा हुंदा। वो कहते बोलो तो सही पर ध्यान धर के बोलो, बाणी पढ़ो तो सही पर ध्यान धर के पढ़ो, बाणी सुनो तो सही पर ध्यान धर के। रात आप कह रहे थे ना भी कोई गावे को सुने, किमें हरनामा चित्त लाए। चित्त लाना की ध्यान लग गया, क्योंकि फिर वो कोई भुलेखा नहीं रह जाएगा, उसनों सहज आएगा ही आएगा, आनंद आएगा ही आएगा। धुन में ध्यान, ध्यान में जाने। हुण मैं छोटी बेनती हो कर लग्या, जदों तुसी आपां कई बार करदे जी बड़ा वाहिगुरू 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 करदे कि नहीं, होवे तुहाडे च बड़िया च किरपा हो सकदी भी करदे होण ते बड़ा आनंद आउंदा होवे, बड़ी किरपा। पर जे मान लो भी वाहिगुरू 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 करी भी जाने, कदे इधर भी वेख लिया, कोई घरे आ भी गया, किते खड़का भी हो गया, खड़का हो रहा किते दूर। मैं एक सौखी जी उदाहरण देना, वाहिगुरू 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 हो रहा, लै भाई हुण तो 4 बज गए, गुरुद्वारे वाला भाई भी बोल पिया। गुरुद्वारा भावें 1 किलोमीटर दूर है, उत्थों की आवाज़ अंदर बैठे सिमरन करदे नूं सुन गई। किवें सुन गई, किवें सुन गई, ध्यान आ गया, ध्यान उत्थे चला गया। कर की रहा, वाहिगुरू वाहिगुरू। हुण ध्यान दो, जेड़ा कुछ बोलिया जा रहा ना, जबान तो बोलिया जा रहा, जेड़ा कुछ भी, बाणी पढ़न का तरीका ही है, नाम जपण का तरीका ही है। पढ़ना भी तुसी है, सुनना भी तुसी है। सुनाओ तो सही कदे, जे मैं एवं कहा भी मैं जसपाल सिंह अज तेन बाणी सुनानी है, मैं ही पढ़ रहा, किनू कहूँगा मैं, आपदे आप भी अज तेन मैं बाणी सुनानी है, सुना के देखो। अज उस दिन जपजी साहब किसी आपदे आप तुसी बाणी पढ़ते होंगे, सपोज करो जपजी साहब रोज़ करते हो, किहदे वास्ते करते, किमें करते हो? बहुत ऐ करते भी आपां तां जी कहा करना कर लिया बस, नहीं है, इस बड़ा फर्क पैंदा है। तुसी करने लगो तो यही कह लो बाबा नानक मैं जपजी साहब पढ़ लिया, आके सुन ला, कोई तुहाडी स्रोत, तुहाडी जबान, तुहाडा लहजा, तुहाडा ध्यान बदल जाएगा। बिल्कुल देख लो कदे कर, या फिर ऐ कहो अज तैनूं सुनाउणा। जिस दिन तुसी कहोगे अपने आप में भी अज मैं तैनूं सुनाउणा जपजी साहब, तो उठ के तुसी दस दोगे भी इन्नियां लाइनां तूं सुनियां ने, इन्नियां सुनिया ही नहीं। एवें हुंदा ना, सुनी नहीं। जिहड़ी चीज़ तुहाडे तुसी सुन लई आपदी जुबान नाल, गा भी है, आपां अगले स्टैप च जाना है, गा भी है, सुनी है। जिहड़ा सुन लिया मन रखिए, यह प्रैक्टिकल आ। जो जुबान चो बोलते हो उही कन्नां नाल सुनो भी मैं बोल रहा, एवें नहीं भी वाहिगुरू 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 इधर भी वाहिगुरू वाहिगुरू नहीं। माफ़ी चाहूँगा, आ सुनने का तरीका तो सुन के देख लो, मैनू कल ही दस दो। 1 मिनट सुनिया नहीं जाता, क्यों? मनी राम जी किते पहुँचा होंगे जान, किते चले जाते हैं। तुसीं हुण ही देख लो, वाहिगुरू जिहड़ा मैं बोलदा ये ना सुनो, किहड़ा सुनना, जिहड़ा तुसीं बोलदे हो। वाहिगुरू सतनाम। आ मगरला सतनाम सारे ने मेरे वाला सुन के बोलिया, आपदे वाला वाहिगुरू जिहड़ा मैं तुहानूं ये दस रहा कित्थे ध्यान जांदा है। ये मतलब ये प्रक्रिया की है भी जिहड़ा मैक तो बोलिया जा रहा तुसीं उहदे मगर बोलदे हो, जो सुनते हो उहदे मगर। हुण जदों तुसीं कल्ले बैठ के सिमरन करते हो, कल्ले बैठ के बाणी पढ़ते हो, तो जिहड़ी जुबान तुहाडी बोलेगी उहदे मगर तुसीं बोलना है। उहदे मगर तुहाडे कंन होने चाहिए भी की बोल रहा है। तो मैनू फिर 15 मिनट जपजी साहब करके दिखा दो भी हो गया, नहीं होंदा। बड़ी कमाल की गल है जी मैं तुहानूं कहण लग्या।
ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 1 घंटा सिमरन करते 1 घंटा भी ना करो 15 मिनट ही कर रहे हो 15 भी बहुत ज़्यादा ने ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ है ਤੁਸੀਂ सुन भी लग गए ਤੁਸੀਂ पढ़न भी लग गए जिन्हें सुनना है जित सुनी मन तन सुनिया सत संतोख ज्ञान सुनिया 8 सटका हुण इशनान होने लग गया किहदा हो रहा इशनान ਇਹਦਾ तो हो ही नहीं रहा ये तो इशनान करके तो असीं जपजी साहब पढ़न लग गए बोलो पढ़ते कि नहीं जपजी साहब इशनान करके पढ़िया फिर इशनान किहदा हो रहा सुनिया 8 सटका की सुनिया फिर जिस चीज़ नूं सुनिया मन का इशनान हुंदा है मन का मन 68 तीर्थां का इशनान कर लैंदा बैठा पर सुने तो सही ना ऐ इशनान करदा ते जदों तुसीं जपजी साहब पढ़ रहे हो तुसीं सुनी जाओ देखो फिर कितना आनंद आंदा कितना इशनान हुंदा है फिर मन का इशनान हुंदा है सुनिया 8 सटका इशनान सुनिया पढ़ पढ़ पावै महान ਜਿਹੜੇ पढ़ पढ़ के लोग जिवें मान पाउंदे ने कहंदे सुनन वाले दे यही अंदर आ जांदे लोड़ नहीं पढ़ पढ़ के मान पाउण सुनिया लागै सहज ध्यान फिर ਉਹਦਾ ਸਹਿਜੀ ਧਿਆਨ ਲੱਗਦੀ ਆ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੁਰਤ ਲੱਗ ਗਈ ਲਿਵ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਬਣਦਾ ਹੈ लिव लग के देख लो कई बार तो ही पता लगता बंदा सौ गया ध्यान लग जाता इसे करके संगत विच कई बार नींद आउंदी है ਉਹਦਾ 2 तरीके होंदे ने मैं कई बार जिक्र करदा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ संगत विच जदों सुनन च नींद आवे उदों मन ने स्रोत विच नींद लई हुंदी है मन नूं शांति आई हुंदी है ਉਹ ਜਿਹੜਾ नींद आ उदों मन सुत्ता हुंदा है जदों आपां वैसे सौंने आ उदों शरीर सौंदा है यही गल ਜਿਹੜਾ ਇਹ ध्यान लगना यही हुंदा है ध्यान किवें लाउणा होर की आ साची लिवै बिन दे निमाणी देह की तो कोई वैल्यू ही नहीं हैगी क्योंकि दी लिव नहीं हैगी साची लिवै बिन दे निमाणी दे निमाणी लिवे वाजो क्या करे विचारिया तो दवाज समर्थ कोई नहीं कृपा कर अनभारिया ये है बाणी पढ़न का आनंद पढ़नी भी तुसी है सुननी भी फिर कल वाला मैं फिर जिक्र करदा मन ही मन से कहे कबीरा मन ही मन नूं कहंदा है मन सा मिलिया ना कोई जो आनंद उठ के आऊगा तुम कहो अज तक बड़ा आनंद है मन लग गया कौन कहता होंगे कहने वाले भी तुसी होने हो मन भी थोड़ा होंदा है लाया भी तुसी होंदा है यही है इहदे विचों सहज आनंद प्रगट होंदा है ये अवस्था का जिक्र है बाबा कहता तू सुनने लग जाए तेन सुनना आ जाए नानक भगतां सदा विकास सदा ही विकास च रहिंदे ने क्यों रहिंदे ने क्योंकि सुनिया दुख पाता सुनन विच हुंदा है अगली पंक्ति पढ़ने की मैं कोशिश करांगी भी अज ये भी नेपरे हो जाए साहब कहते सुनिया सरा गुणा के गा जिमें ना सरा सरा हुंदा है सरोवर गुणा का जिमें सरोवर भरिया हो गया सुनने वाली हो जाता प्रगट क्यों अंदर शांति आ जाती है सत आ जाता है निमरता आ जाती है प्रेम आ जाता ये सुनन विचों हुंदा है जिहदा जिन्ना मन टिकिया होएगा जिन्नी धुन अंदर लगती है जिन्ना मन सुनिया होया उन्ना ही उहदे च निमरता होएगी उन्ना ही सहज होएगा उन्ना ही टिका होएगा जिवें कल कह रहे सी अगे कहंदे सुनिया शेख पीर पातशाह जिवें ईश्वर वर्मा इंद सी जिवें सिद्ध सीगे उवें ये लिखा शेख पीर पातशाह ये भी सुनने नाल जिहड़ियां उपाधियां ने सुन च मिल जांदियां ने सुनिया है अंधे पावै राह जिहड़ा मन अंधा है मन अंधे जन्म गवाया ये मन अंधा है ये सुन दे नाल राह पै जांदा है इहनूं मार्ग मिल जांदा है इहनूं कोई रस्ता मिलदा है मन अंधा ना मन ब्लाइंड अज्ञानता दे विच हुंदा है इस करके सुनदा ही नहीं जे गुरु की नहीं सुनूगा बाणी नहीं सुनूगा या टीचर की नहीं सुनूगा कुछ भी नहीं पल्ले सुनी नहीं हैगी अंधा ही है तो गुरु पातशाह कहते सुनिया हाथ होवे असगा
असगाह समुंदर जिन्ना जिहड़ा हुंदा है वो मार्ग रस्ता हत्थ जिन्ना ही हुंदा, नेड़े हो जाता, इन्ना ज़्यादा हो जाता। जिहड़ा समुंदर पार करना लगता भी ये तो औखा ही बहुत है। जो कहते सुनते होंगे सी पहला भी बड़ा मैनूं याद है भी यार समाधि लगती है, पता नहीं किवें लगदी है। रब दे प्यारे दे 8 पैर समाधि लगी रहिंदी भी, ताईं कुंडी लगी रहिंदी है, बाबे दे बाबे बाहर ही नहीं आउंदे। इस समाधि का की सी ने, क्योंकि जब तक पता नहीं हैगा उन्हां च नहीं। जिन्हां दी समाधि समाधि की है, समावना की है, सुन समाधि आप वाली जी अवस्था हैगी, पौड़ी जी 20वीं आ सुखमनी साहिब की अष्टपदी, वो यही चीज़ सारी समझाई है। किहड़ी समाधि है? साहिब कहते ये जिहड़ा औखा काम लगता है समुंदर वांगू वो हत्थ जिन्ने ही लगता भी तो नेड़े ही है, तो गल ही कुछ नहीं। हुण समाधि जो लगती नहीं पता नहीं, जो लगन लग जेड़े जेड़े सज्जण लाउंदे ने वो तो बैठे ही ला लैंदे ने, इन्नी छेती लगती है। कारण जो पता नहीं है। अगली पंक्ति च कहते नानक भगता सदा विकास। भगतां दे मन में सदा विकास क्यों है? क्योंकि वो सदा उहदे आनंद विच रहिंदे ने, क्योंकि वो सदा उहदे सुणन विच रहिंदे ने। उन्होंने रब जी की सुनी हुंदी है, उन्होंने रब के नाम नाल जुड़े हुंदे ने। इस करके सुनिया दुख पाप का नाश। नानक भगता सदा विकास, नानक भगता सदा विकास। सुने दुख पाप का नाश, सुने दुख पाप